system of cockroach, we will get that their nervous system runs mid-ventrally. We know that non-chordates का nervous system वैसे भी ventrally run करता है, हमारा dorsally run करता है, ठीक है. Runs mid-ventrally along the longitudinal axis of the body, ठीक है. प्लस हमको पता है इंसेक्ट्स में हम लोग को देखने को मिलता है सेगमेंटेशन, चाहे स्यूडो सेगमेंटेशन क्यों ना हो, लेकिन सेगमेंटेशन तो देखने को मिलता है. अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस हम लोग क्या देखेंगे, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा होगा हेड में, ये वाला पोर्शन, एंड हेड के नीचे ऐसे करके आते जाएगा, उसमें कुछ थोरेक्स का गिरेगा, कुछ एब्डोमेन में गिरेगा, ठीक है. तो दिस इज द पोर्शन जो हेड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, ब्रेन और सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन, माने ये ब्रेन का पोजीशन को ऑसोफेगस के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है. सो वेयर इज दिस ब्रेन और सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट इन, इफ वी कंपेयर इट टू द पोजीशन ऑफ ऑसोफेगस, इट इज प्रेजेंट अहेड ऑफ ऑसोफेगस, हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्रेन और सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लियन. फ्रॉम दिस ganglion, from this bilobed mass, bilobe to lobe के जैसा लग रहा है, from this bilobed mass goes out some anterior nerves because they are running anteriorly. These anterior nerves supply sensation to antenna, eye, mouth parts. Okay, so you need to manipulate antenna, you need to manipulate your eye, you need to manipulate the mouth parts during eating. So how you will make those manipulation, how you will get sensory information from them, you will have to have some nerves doing that. So what is this nerve doing it? Anterior nerves are there which connects the brain with these important parts of the head. Okay, this brain or supraesophageal ganglion via paired longitudinal connectives, they are connected to another ganglion जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, subesophageal ganglion. So subesophageal ganglion माने position wise esophagus के नीचे, but subesophageal ganglion तक this is present in the head region. Okay, now from the subesophageal ganglion runs double ventral cord. This is the double ventral cord, hence I have given a partition in the middle. लेकिन ये double ventral cord at regular interval they come in contact and they get fused to form a ganglion which is called as segmental ganglion. Okay, similar हम लोग को आर्थोम में भी मिला था, segmental ganglion से lateral निकल के जा रहा है कुछ nerves, उनको हम लोगों ने lateral nerves बुलाया है. Okay, so if you ask me कि sir can you tell thorax में total कितना ganglion है, तो thorax में ये जो segmental ganglion, thorax में there are present 3 segmental ganglion. That means one ganglion will look after one portion. Prothorax का अपना एक ganglion है, meso का अपना है, meta का अपना है. And if you say sir ये ventral nerve cord तो एकदम लास्ट तक रन करेगा, तो ये तो एब्डोमेन में भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा और फ्यूज होके सेगमेंटल गैंग्लियन बनाएगा. तो एब्डोमेन में कितना बनाएगा, एब्डोमेन का 10 सेगमेंट है, क्या 10 बनाएगा? नहीं, एब्डोमेन में 6 सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट है. सो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द हेड इट विल रन इन द thorax and abdomen region also. So in the thorax region what is this double ventral nerve cord is doing? This double ventral nerve cord is fusing and forming a segmental ganglion. So how many segmental ganglion it forms by fusing in thorax? It forms 3. How many segmental ganglion it forms by fusing in abdomen? 6. So ventral nerve cord forms total 9 segmental ganglion, 3 in thorax, 6 in abdomen, and total number of ganglion अगर पूछा जाए then you will say there are 11 ganglion. 2 in head, 3 in thorax, 6 in abdomen. 2 in head, this and this. Okay, so I hope nervous system ये clear हुआ है. एक question काफी पूछा जाता है that if we cut the head of the cockroach, still we see that the cockroach is alive for 7 days. 7 days. Okay, 7 days के बाद वो मर जाता है. 7 days बिना हेड का एक हेडलेस कॉकरोच, जस्ट thorax एंड एब्डोमेन के मदद से एक कॉकरोच 7 days तक कैसे जिंदा रह सकता है? आफ्टर बीहेडिंग इट, आफ्टर कटिंग डाउन द हेड, कैसे रहेगा? बिकॉज उसका नर्वस सिस्टम एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, उसका नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कोई एक गैंग्लियन नहीं कर रहा है. जो भी हेड का एक्टिविटी है, हेड रीजन में जो भी एक्टिविटी करना है वो कौन कर रहा है? वो ये दोनों मिलकर कर रहा है, सुप्रा एंड सब ओसोफेजियल गैंग्लियन मिलकर कर रहा है. चाहे वो स्वेलोइंग क्यों ना हो, चाहे वो मूवमेंट ऑफ माउथ पार्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो एंटीना मैनिपुलेशन क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल आई एंड कंपाउंड आई से विजुअल रिसेप्शन ही लेना क्यों ना हो,
ये सब जो हेड का एक्टिविटी है वो ये दोनों मिलकर कर रहा है। जो थोरेक्स का एक्टिविटी है वो थोरेक्स का 3 सेगमेंटल गैंग्लियन मिलकर कर रहा है। प्रोथोरेक्स का एक्टिविटी प्रोथोरेक्स वाला गैंग्लियन कर रहा है, मेसो वाला जो भी है विंग्स एंड लेग्स ये कर रहा है, मेटा का विंग्स एंड लेग्स इसका ये गैंग्लियन कर रहा है। एब्डोमेन रीजन में हम लोग को पता है एलिमेंट्री कैनल है और भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उन सब का जो मैनिपुलेशन होगा, जो नर्वस कंट्रोल होगा वो कौन करेगा? वो ये 6 गैंग्लियन करेगा। बिकॉज इसका नर्वस सिस्टम हमारे जैसा नहीं है, ठीक है, हमारा सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन से होके जाता है। इन लोग का हर एक पोर्शन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दे हैव अ रेस्पेक्टिव गैंग्लियन प्रेजेंट। सो इवन इफ यू कट द हेड यू आर cutting the nervous system which controls the activity of the head. You are not cutting down the nervous system of the thorax part. You are not cutting down the nervous system of the abdomen part. So those nervous system will behave accordingly. लेकिन अगर तुमने उसका हेड काट दिया वो तो खाना नहीं खा पाएगा, तो 7 डेज के बाद जो मैं बोलता हूँ ये मर जाएगा। ये क्यों मरेगा? ड्यू टू स्टार्वेशन मरेगा, क्योंकि हेड काट दिया उसमें माउथ पार्ट्स था वो चला गया, तो ड्यू टू स्टार्वेशन वो कॉकरोच मरेगा। या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो जगह पे तुमने कट किया है वहां पे बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्ट करना शुरू करेगा या इन्फेक्शन से मर जाएगा। समझ में आ रहा है कि हेड काटने से ही वो नहीं मरेगा। सो आई होप ये अभी जो बोला है वो भी समझ में आया है, उसका भी मैं नोट देता हूं। एंड सेंसरी सिस्टम आज डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट वीडियो। ओके, मेक नोट्स। तो यहाँ पे वो जो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच का रिमूवल का जो बात हम लोगों ने किया था अभी जस्ट, उसका नोट दे दिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी टुडे इज अबाउट सेंसरी सिस्टम। सो इन सेंसरी सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ सेंसरी सिस्टम ऑलरेडी इवन इन द मॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ द कॉकरोच। देखो क्या क्या है, एंटीना मल्टी सेगमेंटेड एंटीना में देयर आर प्रेजेंट सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। ऑल्फैक्टो, थर्मो, टच, ये सब रिसेप्टर प्रेजेंट है एंटीना में। आईज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आई, सिंपल आई, कंपाउंड आई, है ना। सिंपल आई में सिंगल विजुअल यूनिट जिसको हम लोग ओसेली बुलाते हैं, एंड कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 विजुअल यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग कंपाउंड आई बुलाते हैं। और 2000 विजुअल यूनिट को कलेक्टिवली हम लोग बुलाते हैं ओमाटिडिया। ईच विजुअल यूनिट ऑफ दोस 2000 इज कॉल्ड एज ओमाटिडियम, ठीक है। तो ये है कंपाउंड आई सिंपल आई का डिफरेंस। मैक्सिलरी पेल्प्स, मैक्सिला में पेल्प्स निकला हुआ था हम लोगों ने देखा। लेबियल पेल्प्स आर सम small projection which comes out from the labium, ठीक है ना। वो भी टच रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट होता है। एनाल सर्सी, एनाल स्टाइल्स, ये सब हम लोगों ने देखा है, ठीक है। ये सब है सेंसरी सिस्टम। और इन सब सेंसरी सिस्टम में थोड़ा सा अभी ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग आईज एंड आईज में कंपाउंड आईज, क्योंकि व्हाट इज द टाइप ऑफ द विजन जो कॉकरोच को मिलता है वो उसके ऊपर सवाल काफी आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड आई नाउ। ओके, यू मेक दिस। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला सेंसरी सिस्टम बहुत सारा है, बट वी नीड टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज द कंपाउंड आइज। सी आइज माने कंपाउंड आइज ऑफ कॉकरोच, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। द विजुअल यूनिट्स, एज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड आई, प्लूरल वे में हम लोग ओमाटिडिया बुलाते हैं, सिंगुलर ओमाटिडियम, आर ट्रांसपेरेंट। कैसा है ओमाटिडिया या ओमाटिडियम देखने में? दे आर ट्रांसपेरेंट, मोर और लेस हेक्सागोनल, ओके, बाइकन्वेक्स एरियाज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन इमेज, ठीक है। ये है कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड आई। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने 2 विजन के बारे में बात किया है। एक नीचे का पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड एक ऊपर का पॉइंट है ये वाला पॉइंट। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजन ऑफ कॉकरोच के बारे में बात किया गया है। एक पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग मोजाइक विजन, एंड एक में हम लोगों ने बोला है बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट। एज वी नो द कॉकरोच कम्स आउट इन द नाइट, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल, दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग नाइट और व्हेन देयर इज नो लाइट, ठीक है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन, बिकॉज वो लोग जब एक्टिव रहेगा, जब बाहर आएगा तभी तो विजन का जरूरत पड़ेगा। जब बोले सो रहा है या कहीं पे इनएक्टिव होकर पड़ा हुआ है डे का टाइम में, तब उसमें तो विजन का कोई जरूरत ही नहीं है। सो दे बिकम एक्टिव एट नाइट, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, हेंस द विजन व्हिच दे यूजेस एट नाइट इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल विजन। ओके, तो नीचे वाला समझा दिया। मोजाइक विजन का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आगे ही लिखा दिया है, अभी समझाऊंगा। ओके, डेफिनेशन मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया है, तो अभी जो मोजाइक विजन समझाऊंगा उसका डेफिनेशन ये है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोजाइक विजन एंड दैट विल बी द
last part of today's video. So you make note. Now we will discuss about mosaic vision. So it is about understanding. You can keep like you can write this point, you can write this point, mosaic vision, and then you can keep some gap. In that gap you can write whatever I will discuss now, and then the last point you will write about this nocturnal vision. Okay, so you make notes accordingly. So यहाँ पे देखो मोज़ेक विजन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। मान लेते हैं ये कंपाउंड आई है, एंड वी नो कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 विजुअल यूनिट कॉकरोच का, लेकिन 2000 यूनिट यहाँ पे ड्रॉ करना ये तो नामुमकिन है, इसलिए मैंने कुछ ही ओमाटीडिया यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, कुछ ही ओमाटीडिया ड्रॉ किया है। तो जो गोल गोल दिखाई दे रहा है दीज आर ओमाटीडिया, ओके, ओमाटीडियम, ठीक है। इंडिविजुअली ओमाटीडियम बुलाएंगे, कलेक्टिवली ओमाटीडियम। देखो यहाँ पे इस तरीके का विजन जिस इंसेक्ट को मिलता है उनका कंपाउंड आई कैसा टाइप का कंपाउंड आई होता है, उनका कंपाउंड आई इज कॉल्ड एज एपोजिशन आई। एंड व्हाट इज दिस एपोजिशन आई? In apposition eye we will see that in between the ommatidium there is a sheath present called as iris sheath. Okay, so presence of iris sheath in the compound eye makes it a apposition compound eye. Okay, this is the thing that we will have to keep it in your mind. So cockroach का जो compound eye है उसके ommatidium and ommatidium के बीच में iris sheath present है। हर adjacent ommatidium will not come in direct contact with one another, they will have a sheath present. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग वहां से अगर देख रहे हो तो ये भी गोल है। सपोज दिस इज वन ओमाटीडियम एंड दिस इज अनदर ओमाटीडियम, सो व्हाट वी विल सी समथिंग लाइक दिस। दैट मींस इन बिटवीन द टू ओमाटीडियम देयर इज प्रेजेंट सम शीथ। दिस माय स्किन इज अ शीथ, दिस इज द आइरिस शीथ, दिस इज ओमाटीडियम, आइरिस शीथ, ओमाटीडियम, आइरिस शीथ, ओमाटीडियम, लाइक दिस। समझ में आया ना? तो इस तरीके का कंडीशन है कि एक ओमाटीडियम को आइरिस शीथ ऐसे करके सराउंड किए हुए है, ठीक है, जिसके वजह से ये सराउंड करने के वजह से ये सराउंड आइरिस शीथ इस ओमाटीडियम को सराउंड करने के वजह से अब क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट इसमें पास होगा कि नहीं, ठीक है। आज अगर ये आइरिस शीथ नहीं होता और ये ओमाटीडियम ऐसे होता तो इसमें देखो कितना लाइट आके घुस रहा है, बहुत ज्यादा मल्टीपल डायरेक्शन से लाइट आके इससे घुस रहा है। लेकिन आज अगर मैं इसके सामने ऐसा करके पर्दा टाइप अगर मैं दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ओनली लिमिटेड लाइट विल बी अलाउड टू एंटर। तो इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये आंख आज किसी इमेज को देख रहा है, आज किसी इंसान को देख रहा है, ठीक है ना, तो अगर आइरिस शीथ नहीं होता, सपोज ये ओमाटीडियम है और ये ओमाटीडियम एक इंसान को देख रहा है, आज अगर वो ये ओमाटीडियम में आइरिस शीथ बोले नहीं है, नो आइरिस शीथ इज देयर, ओके। सो इफ देयर इज नो आइरिस शीथ तो ये ओमाटीडियम क्या होगा, जो ह्यूमन इस ओमाटीडिया के सामने खड़ा है उस ह्यूमन का पूरा इमेज ये ओमाटीडियम लेगा। सिमिलरली इसके आसपास एक और ओमाटीडियम जो होगा, नो आइरिस शीथ, कोई आइरिस शीथ नहीं है, ये भी उस इंसान का पूरा इमेज लेगा, ये भी उस इंसान का पूरा इमेज लेगा। लेकिन आज अगर इसमें ओमाटीडियम जो है उसमें अगर आइरिस शीथ प्रेजेंट है, वो आइरिस शीथ तो लिमिटेड लाइट को अंदर घुसने देगा। तो अंडर दैट कंडीशन क्या होगा, ये जो ओमाटीडियम अभी है ये सिर्फ एक इंसान का नाक दिखेगा। ये जो ओमाटीडियम है इसके ऊपर में भी आइरिस शीथ है, ये ओमाटीडियम उस इंसान का सिर्फ आंख, आईज दिखेगा या फोरहेड दिखेगा, ठीक है। तो आइरिस शीथ का प्रेजेंस होने की वजह से आंख जो है वो एक ऑब्जेक्ट का पार्ट बाय पार्ट या सम स्मॉल पार्ट्स का ही इमेज देखता है। लेकिन आज अगर आइरिस शीथ नहीं होता है तो वन ओमाटीडियम विल गेट अ पिक्चर ऑफ द एंटायर इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका पूरा इमेज एक ओमाटीडियम को मिलेगा। बट आइरिस शीथ होने से उस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट का इमेज ही इसको मिलेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइरिस शीथ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा, each ommatidium captures a part of the ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, कैप्चर्स पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, ईच ओमाटीडियम उस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट ही बस देख पा रहा है। आइरिस शीथ नहीं होता तो ईच ओमाटीडियम होल इमेज देखता, ठीक है। लेकिन आइरिस शीथ का प्रेजेंस के वजह से, लाइट रेस्ट्रिक्ट करने के वजह से एक ओमाटीडियम अब बस इमेज का एक ही पार्ट को देख रहा है। तो इस तरीके का ये देख रहा है आंख, ये देख रहा है नाक, ये देख रहा है फोरहेड, ये देख रहा है चीक। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आंख स्मॉल पार्ट्स को ब्रेन में भेजेगा, सुप्राओसोफेजियल गैंग्लियन में इट विल बी सेंड
and in supraesophageal ganglion each of these parts will be joined to get a image. But the type of image it will have more sensitivity but less resolution, because छोटा छोटा पार्ट्स को ज्वाइन करके ब्रेन में अगर इमेज आएगा तो क्लियरिटी नहीं आएगा इमेज का. सो द इमेज विल बी ऑफ लेस रिजोल्यूशन बट ऑफ मोर सेंसिटिविटी. ठीक है ना. सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स द इंसेक्ट गेट्स टू नो दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट द इंसेक्ट कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली. दैट इज व्हाट मोर सेंसिटिविटी मीन्स. मोर सेंसिटिविटी मीन्स, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स, okay, there will be some change in light, there will be some change in image. So if the object moves, the insect will know, but the insect will never know that how this object actually looks like, okay, because of the low resolution. Okay, this type of image which is formed in the brain by the like addition or accumulation of small parts of the image, that type of image is called as apposition image. And this type of compound eye which gives apposition image or which gives mosaic vision are called as apposition compound eyes. Okay, so I hope you understood what the mosaic vision is. Definition पढ़ लेना, अभी जो समझाया उसके बाद definition पढ़ लेना, पूरा कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड बिकॉज कॉकरोच में मोजाइक विजन है जिसमें रिजोल्यूशन कम है, ठीक है, उसको कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता है ड्यू टू द पुअर रिजोल्यूशन, ड्यू टू द नेचर ऑफ द वर्किंग ऑफ इट्स कंपाउंड आई. इसलिए उसने जुगाड़ रखा है. क्या जुगाड़ रखा है? सिंपल आइज को भी रखा है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अगर क्लियरली दिखाई देता तो सिंपल आई को रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता. ठीक है. लेकिन बिकॉज इसका विजन नॉक्टर्नल है, इसका विजन मोजाइक है, ठीक है, तो उसमें ऐसे ही अगर नॉक्टर्नल अगर होगा तो रात को निकलेगा तो कम लाइट है. उस कम लाइट में जो इमेज वो देखेगा वो इमेज भी उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द आई. ठीक है. सिर्फ सेंसिटिविटी पता चलेगा, कोई पास से गया है, कुछ सेंसिटिविटी थोड़ा सा पता चलेगा. तो ऐसे आंख लेके क्या फायदा है जिसमें जो आंख का काम ही है टू गिव यू विजन. इट इज गिविंग यू जस्ट हाई सेंसिटिविटी बट इट इज नॉट गिविंग यू द प्रॉपर लुक ऑफ द इमेज, द प्रॉपर क्लियरिटी ऑफ द इमेज. हेंस it will have to have an additional eye, ठीक है, in order to understand about the change in the intensity of light. because ये आंख रख के भी इसको इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है. ठीक है. so I hope you understood what is mosaic vision. इसके पहले जो definition दिया है उसके साथ इसको मिला के जब तुम लोग करोगे तो you will understand it quite nicely. so in cockroach the last thing which is left is the reproductive system. reproductive system male and female, हाउ देयर कॉपुलेशन हैपेंस, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही डिस्कशन बाकी है. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. ठीक है. यहाँ तक नोट्स बना लो, अच्छे से देख लो. बाय बाय.